Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ 21 एंड 22 जनवरी के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की। यूनियन कैबिनेट चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे अभी कुछ अगर अप्रूवल्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर 16th फाइनेंस कमीशन, पहला। दूसरा, एक MOU साइन किया गया इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन के बीच में फॉर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तीसरा, एक MOU साइन किया गया इंडिया और कीनिया के बीच में, ताकि डिजिटल सॉल्यूशंस को एक दूसरे की कंट्री के साथ शेयर किया जा सके एंड उसको स्केल किया जा सके। चौथा याद रखेंगे, एक MOU साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स, एंड ये जो MOU था आपका मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस के लिए था। पांचवा भी याद रखेंगे, ये MOU भी इंडिया एंड एक्वाडोर के बीच में साइन किया गया था, और ये भी आपका मेडिकल रेगुलेशंस के लिए था, मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए था। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे आपको प्रपोजल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच 3 ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया टू लेवरेज AI इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में AI का यूज़ होगा, राइट, मशीन लर्निंग का यूज़ होगा। हम देखेंगे IoT डिवाइसेस आएंगे जो सेंसर बेस्ड होंगे, देन हम ड्रोन्स का यूज़ करते हुए देखेंगे, और ये जो ड्रोन्स हैं ना, आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के AI के द्वारा ही रन किए जाएंगे। कब हमें स्प्रे करना है, कब हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, कभी इरीगेट करना है हमें, राइट, कहाँ पे वीड्स आ गए हैं, वीड्स को एलिमिनेट करना है। आप बाहर के देशों में देखेंगे तो एक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप लेज़र से वीड्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रखी है एक लाइन में, और आप देख रहे हैं बीच में ना अनवांटेड प्लांट्स छोटे मोटे ग्रो करने लगे, वो वीड्स होते हैं। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए एक लेज़र का यूज़ किया जाता है जो AI बेस्ड होती है। वो लेज़र सीधा इन वीड्स को टारगेट करती है एंड इनको बर्न कर देती है, इनको ग्रो होने से रोक देती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आप फ्यूचर में देखेंगे। देन AI मशीन लर्निंग की मदद से हम देखेंगे कि हम वेदर को फॉरकास्ट करके कब ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, किस चीज़ की सॉइल में रिक्वायरमेंट कम है, किसकी ज़्यादा है, तो वो चीज़ों का भी सारा ध्यान रखा जाएगा, और इससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वो 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? NFWPIS जो कि है नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, देन इंडिया AI एंड वाधवानी फाउंडेशन। ये तीनों मिलकर यहाँ पर AI की मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने का काम करेंगी। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखें, एज पर द MOU वाधवानी फाउंडेशन सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन फॉर्मुलेटिंग द एग्जीक्यूटिंग द AI स्ट्रेटेजी, जो एम करेगा इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए इन द AI ड्रिवन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। और ये MEITY के नेशनल प्लान फॉर AI के अंडर ही अलाइन करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किसने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप एंड अ बुक ऑन अयोध्या राम टेम्पल। तो यहाँ याद रखेंगे 3 कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे लॉन्च
6 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 6 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प प्लस एक बुक लॉन्च की गई थी जिसमें हमें स्टैम्प्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम 20 कंट्रीज बेस्ड ऑन लॉर्ड रामा, लॉर्ड गणेश, हनुमान जी, जटायु, राइट, इनके ऊपर। तो मार्क करके चलेंगे। तो एंड ये जो स्टैम्प्स है ना इस बुक्स में, ये 20 कंट्रीज से लिए गए हैं, राइट। 20 कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कंबोडिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, करेक्ट। इन कंट्रीज से ली गई और ये दर्शाता है कि इन कंट्रीज में भी इंडिया का जो रिलीजन है उसका इफेक्ट है काफ़ी, और इन सोसाइटीज से हमने ये डाटा कलेक्ट किया, ये पोस्टेज स्टैम्प्स लिए, करेक्ट। तो मार्क करेंगे, दो चीज़ हो गई, 6 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प और एक बुक अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मलेरिया फ्री किसको डिक्लेयर कर दिया, वो है रिपब्लिक ऑफ कैबो वर्डे। इनको यहाँ पर अभी रिसेंटली मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है और ये 3rd कंट्री बनी है जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया WHO अफ्रीकन रीजन के द्वारा। पहली थी मॉरिशियस थी, 1973 में इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। देन अल्जीरिया 2019 में, और अब 2024 में रिपब्लिक ऑफ कैबो वर्दे को यहाँ पे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इनके द्वारा अभी एक ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी को लॉन्च किया गया विद बेनिफिट एनहेंसर। इसके अंडर अगर आप अपना प्रीमियम देना बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, या आप भर नहीं पाते, तो आपको 100% आपका प्रीमियम रिटर्न मिलने का ये ऑप्शन मिलता है, राइट। इसी के साथ साथ आपको काफ़ी लोन फैसिलिटीज़ भी यहाँ देखने को मिलती हैं, करेक्ट। तो काफ़ी बेनिफिट इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। फिर आप देखेंगे ये जो मिनिमम एंट्री एज है 40 ईयर्स एंड 30 ईयर्स रहेगी इसकी। फिर इसी के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अलग बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो मिनिमम एन्युटी पे की जाती है वो 12,000 रुपये है पर एनम, मतलब मिनिमम 1,000 रुपीज़ पर एनम से यहाँ पे एन्युटी प्रोवाइड की जाती है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, मिस्टर अनूप बागची। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट है एनर्जी रिमेन्स, नहीं, NSE remains the world's largest derivative exchange in 2023 for which consecutive year? So 5वें साल 5th consecutive year से लगातार यहाँ पे NSE रिमेन करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है फॉर द 5th consecutive ईयर। अभी 2023 में भी इन्होंने टॉप किया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे NSE 3rd आता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी सेगमेंट, करेक्ट। 3rd आता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी सेगमेंट, एंड 5th आता है इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एंड 1st आता है फॉर द 5th consecutive टाइम इन द डेरिवेटिव एक्सचेंज, लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इन 2023, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे निफ्टी 50 ने फॉर द फर्स्ट टाइम 20,000 लेवल को मार्क टच किया। देन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लिस्टेड कंपनीज की है, इट एक्सीडेड $4 ट्रिलियन, एंड जो SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लिस्टेड कंपनीज, इनकी जो वैल्यूएशन है उसने 1 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। एंड द नंबर ऑफ यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स ऑन द एक्सचेंज एक्ससीडेड 8.5 करोड़ एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। NSE की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, आशीष कुमार चौहान। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं NSE रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2023 फॉर 5th consecutive ईयर एंड 3rd इन द इक्विटी सेगमेंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी ज्वाइन किया हैंड्स विद UNCIA फॉर देयर सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म यूनशिया चेन। तो अंशिया चेन के लिए, UNCIA चेन के लिए, जो कि आपके डेली लेंडिंग ट्रांजैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। सप्लाई चेन इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बायर्स को, सेलर्स को, लेंडर्स को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाने के लिए, करेक्ट। बैंक का कौन सा बैंक रहेगा, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने टाई अप किया UNCIA के साथ ताकि एक सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म UNCIA चेन को लॉन्च किया जा सके, जिससे क्या है कि जो बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। द प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च एट यूनिटी बैंक इन लेस देन 100 days। अंशिया UNCIA टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, हरी पद्माभन जी। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में, और 2020 में इसको
इस्टेब्लिश किया गया। फिर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? इंद्रजीत कमोत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया ओवर 486 करोड़ रुपीस इन SCIT वर्क प्रोजेक्ट मेरिडियन? राइट, SCIT क्या है? ये एक तरह का इन्वेट होता है, यहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं। तो SCIT की अगर हम बात करें, ये है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ये एक तरह का इन्वेट है और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस सेट में, करेक्ट। और वो पैसा जो कलेक्ट होता है थ्रू दिस, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 486 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इन SCIT वर्क प्रोजेक्ट मेरिडियन के अंदर? तो वो है AIIB। AIIB ने 486 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट किए। 486 का मतलब $58.4 मिलियन यहाँ इन्वेस्ट किए गए इन दिस SCIT, राइट। और हम देख चुके हैं SCIT के एक तरह का इन्वेट है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाती है। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरिडियन की बात करें, ये प्रोजेक्ट मेरिडियन लॉन्च किया गया था, करेक्ट। एम जिसका था कि डेवलपमेंट ऑफ इन्विट्स, इस इन्विट्स का हमें डेवलपमेंट करना है ताकि एक एसेट क्लास बनाई जा सके जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट। और ये जो टोटल फंडिंग थी इस प्रोजेक्ट की वो थी $73 मिलियन की, राइट। चलिए, फिर अगर हम बात करें AIIB की, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? जिन लिंक्विन, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में रहेगा और 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द फंडिंग आजकल जो हम बॉन्ड्स के थ्रू उठा रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि वो पैसा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने की तरफ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर, आप यहाँ देख सकते हैं सीट, ये क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इनविट हैज 8 ऑपरेटिंग सोलर पावर जनरेशन एसेट्स ऑफ 1.54 गीगावाट पीक टोटल कैपेसिटी, जो कि नेशन वाइड है इंडिया में। देन सीट वॉज सेटअप बाय महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, जो बैक्ड बाय महिंद्रा ग्रुप एंड ओंटारियो लिमिटेड। सीट इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी इनविट रेगुलेशन एंड सीट फोकसेज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टिंग इंडिया टू अचीव देयर नेट जीरो टारगेट। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो RBI's इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स नाउ कास्ट Q3 फिजिकल ईयर 24 ग्रोथ एट 7%। प्रोजेक्ट की जा रही थी कि इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24, जो कि था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, राइट। वहीं पे हमने देखा जो ये अभी एक्सपेक्टेड ग्रोथ आई थी वो थी 6.5% की, लेकिन इंडिया एक्चुअली ग्रो करा बाय 7% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24। ये मार्क करके चलेंगे, RBI के द्वारा ये डाटा को रिलीज यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के लिए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई। ये हाई लेवल कमेटी बेसिकली इंटरेस्ट्स को, उनके राइट्स को सेफगार्ड करेगी ऑफ शेड्यूल कास्ट, राइट। शेड्यूल कास्ट के जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, राइट, इनके यहाँ पे इंटरेस्ट को, इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? राजीव गौबा, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। एंड याद रखेंगे इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद राजीव गौबा एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। तो अभी स्पेसएक्स के द्वारा AX3 पहली चीज, और दूसरी चीज याद रखेंगे यहाँ पे एक पहला टर्किश एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया, एक्सियोम 3 मिशन, ये राइट, ये लॉन्च किया स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से, फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया। और जो पहले टर्किश एस्ट्रोनॉट थे ये कौन थे? ये हैं एल्पर ज़रावजी, राइट। तो इनको लॉन्च किया गया यूजिंग द ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट, राइट। ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट की मदद से इनको स्पेस में लॉन्च किया गया टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और एक्सियोम 3 को फैल्कन 9 की मदद से स्पेस में लॉन्च किया गया। तो स्पेसएक्स के द्वारा भी ये 2 मिशन कैरी आउट कराए गए, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया एस्त्रा मिसाइल्स को। एस्त्रा मिसाइल्स ये इंडियन एयरफोर्स को दी गई हैं, करेक्ट। ये आपके स्पेसक्राफ्ट में लगती है मिसाइल डायरेक्ट, फाइटर जेट में लगती है डायरेक्टली, और इसको अभी सुकोई 30 मार्क 1 में डायरेक्टली फिट किया जाएगा इस एस्त्रा मार्क 1 सिस्टम को, राइट, इस मिसाइल को। इस मिसाइल की बात करें तो 80 से लेके 110 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। देन इसको याद रखेंगे ये एयर टू एयर मिसाइल है, राइट, एयर टू एयर मिसाइल रहेगी, हवा में ही ये अटैक करेगी डायरेक्टली। इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, एंड इसको मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, राइट। और इसको फ्लैग ऑफ किया गया था
एट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो यूनिट है हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ पर। करेक्ट, तो मार्क करके चलेंगे। एस्ट्रा मिसाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास है ऑफ एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। करेक्ट, डीआरडीओ के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया, डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। एस्ट्रा मार्क 1 वेपन सिस्टम को इसको इंटीग्रेट किया जाएगा सुकोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इनटू इंडियन एयरफोर्स। रेंज 80 से 110 किलोमीटर, ऑल्टीट्यूड 0 से 20 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 4.5 मैक की रहेगी और 3840 मिलीमीटर का यहाँ पे इसकी लेंथ रहेगी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर, अभी हमने देखा जहाँ पे इसको फ्लैग ऑफ किया गया, हैदराबाद तेलंगाना। फिर नेक्स्ट याद रखेंगे नॉर्थ कोरिया, इन्होंने अभी एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम हेल 523 को अभी रिसेंटली टेस्ट किया। इसको ईस्ट सी में, जिसको हम सी ऑफ जापान के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया था। हेल 523 इसका मीनिंग है सुनामी, HAEIL 523। हेल 1 को मार्च 2023 में टेस्ट किया गया था और ये अभी 5th एडिशन है जो अभी टेस्ट किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ठीक है, ये एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल रहेगी जो कि लार्ज रेडियो एक्टिव वेव्स जनरेट करती है बाय क्रिएटिंग एन एक्सप्लोशन अंडर द वाटर। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो अभी हिमालयन वुल्फ, राइट, इनको क्लासिफाई किया गया एज वनरेबल इनटू द IUCN's रेड लिस्ट। रेड लिस्ट क्या होती है? ये वो लिस्ट है जो कि अनडेंजर्ड एंड जो वनरेबल जो वनरेबल स्पीशीज होती है ना, उनकी लिस्ट आती है रेड लिस्ट में, राइट। उनको लिस्ट किया जाता है रेड लिस्ट में ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड ये IUCN के द्वारा रेड लिस्ट रिलीज की जाती है। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्होंने अभी रिसेंटली हिमालयन वुल्फ को क्लासिफाई किया एज वनरेबल इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। ठीक, नेक्स्ट याद रखेंगे स्पोर्ट्स। तो अभी टाटा ग्रुप ने सिक्योर किया टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर IPL 2024 से 2028 में जो भी IPL होगा 5 साल के लिए, उसके जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं किसके पास रहेंगे? टाटा ग्रुप के पास। ठीक है, एंड BCCI अवॉर्डेड द स्पॉन्सरशिप फॉर अ वैल्यू ऑफ 2500 करोड़ रुपीज एंड दिस डील सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाइएस्ट एवर स्पॉन्सरशिप अमाउंट इन IPL हिस्ट्री। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ की बात करें, फिर अरुणाचल प्रदेश ने भी सेलिब्रेट किया 9th एडिशन ऑफ पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट। पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। 9th एडिशन था इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का। 18 से 20 जनवरी के बीच में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी लेट्स आवर हॉर्नबिल रिमेन। ठीक है, मार्क करके चलेंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई वन लाइनर रिवीजन पर। कैबिनेट अप्रूवल्स हम देख ही चुके हैं। देन NFWPIS ये क्या है? AI एंड वाधवानी फाउंडेशन, इन तीनों ने मिलकर एक MOU साइन किया टू लेवरेज AI इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देन PM मोदी ने कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प 6 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प एंड बुक को लॉन्च किया गया ऑन अयोध्या राम टेम्पल। देन रिपब्लिक ऑफ कैबो वर्दे, इनको डिक्लेयर किया गया मलेरिया फ्री बाय WHO। देन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इन्होंने लॉन्च किया एक पेंशन प्लान फ्लेक्सी विद बेनिफिट एनहेंसर। देन NSE ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव रहा इन द डेरिवेटिव एक्सचेंज रहा इन 2023 फॉर द 5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर एंड 3rd इन द इक्विटी सेगमेंट। देन यूनिटी बैंक ने ज्वाइन किया हैंड्स विद UNCIA फॉर SCF प्लेटफॉर्म यूनिशिया चेन। AIIB ने इन्होंने इन्वेस्ट किया 486 करोड़ रुपीज़ इन SCIT फॉर प्रोजेक्ट मेरिडियन। RBI की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स नाउ कास्ट फॉर 3rd क्वार्टर फॉर फिजिकल ईयर 24, जो ग्रोथ आई वो थी 7%, एक्सपेक्ट की जा रही थी 6.5%, बट एक्चुअल कितनी आई? 7%। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की एक हाई लेवल कमेटी ताकि जो राइट्स हैं शेड्यूल कास्ट के, राइट, उनके इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए। देन SpaceX ने लॉन्च किया एक्सियोम स्पेस AX3 मिशन एंड यहीं पे इन्होंने फर्स्ट टर्किश एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में लॉन्च किया। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडिजिनियस एस्त्रा मिसाइल को फॉर सप्लाई टू इंडियन एयरफोर्स। इसको मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा एंड ये एयर टू एयर मिसाइल रहेगी। देन नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम हेल 523 को। देन हिमालयन वुल्फ, ये वो स्पीशीज है जिनको वनरेबल डिक्लेयर किया गया इन IUCN's रेड लिस्ट। एंड टाटा ग्रुप ने सिक्योर की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर IPL 2024 से 28 के लिए 5 सालों के लिए। करेक्ट। एंड अरुणाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया 9th एडिशन ऑफ पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। Name the bank that recently launched a new scheme called Inspire program for senior citizens. Inspire प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पूछा जा रहा है कि उस बैंक का नाम बताओ जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया।
तो वो है बंधन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इंस्पायर प्रोग्राम। 60+ ईयर्स के लिए 60+ एज के इंडिविजुअल्स के लिए होगा ये। मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पे 2 अकाउंट का होगा। 1 लाख रुपए का तो होगा आपका प्रीमियम सेविंग अकाउंट, और अगर 25,000 रुपये है तो वो आपका एडवांटेज सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, एज पर द हाफ ईयरली इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 नवंबर 2023 रिलीज्ड बाय डीईए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंट इन फिस्कल ईयर 2024। तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है 6.5% की। ये डाटा आप देखेंगे 6 से 7% के बीच में वेरी करता रहेगा, राइट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डाटा पब्लिश करेगी, ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर देती है। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो फर्स्ट हाफ था 2023 का, हमने वहाँ पर 7.6% से यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमने ग्रो किया, और 7.7% से हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज ग्रो किया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 24, जो कि 23-24 का डाटा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर चेस मास्टर और वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। इन्होंने अभी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। फॉर विच टाइम, तो इन्होंने 5वीं बार यहाँ पे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया इन मेंस कैटेगरी। वहीं पे रशिया की चेस प्लेयर एनास्तीसिया बोदनारुक, इन्होंने 5 वर्ल्ड वीमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है, करेक्ट। और इन्होंने इंडिया की कोनेरो हम्पी, जो कि इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर हैं, उनको हराया टू विन दिस टाइटल ऑफ वीमेंस कैटेगरी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन फर्स्ट, करेक्ट। नेक्स्ट है हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 1 जनवरी 2024। तो अशोक वासवनी, राइट, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 1 जनवरी। ये किनको रिप्लेस करेंगे? दीपक गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ, राइट। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे खुल रहा है? ये वृंदावन में खुल रहा है इन यूपी, ठीक। फिर इसी के साथ साथ 12th एडिशन ऑफ दिव्या काला मेला कहाँ पर होगा? सूरत में होगा, करेक्ट। फिर IREDA ने 2024 को डिक्लेयर किया एज द ईयर ऑफ HR डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया इट्स ओन सैटेलाइट, ये हम देख ही चुके। ECI ने लॉन्च किया एनकोर, ये भी देख लिया। फिर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, कहाँ पर? बेंगलोर में। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 न्यू दिल्ली में। नीति आयोग ने होस्ट किया स्टेट लेवल इनोवेशन वर्कशॉप इन IIM बेंगलोर। देन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने ऑर्गेनाइज किया ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 को। इंडिया एंड श्रीलंका इन्होंने रीलॉन्च किया इकोनॉमिक एंड टेलीकॉम कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट नेगोशिएशन। दैन इंडिया एंड UAE इन्होंने साइन किया एक MOU टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज। मुंबई रैंक्ड 4th इन द ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थाईलैंड ने अनाउंस किया वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। CBSE इन्होंने ओपन किया न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कहाँ पर? UAE में। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को। देन ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट कहाँ पे हुई? IIT गुजरात में। PM गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। L&T ने कंस्ट्रक्ट किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन आंध्राज भोगापुरम। देन दिल्ली बैंक्स ऑन IIT कानपुर आर्टिफिशियल रेन टू टैकल पॉल्यूशन क्राइसिस। जल दिवाली वाटर फॉर वीमेन फॉर वाटर कैंपेन, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। चिली 95th मेंबर बन गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलके। अजय माथुर यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। देन यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया काउ सेंसस, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। देन 8th एडिशन ऑफ विजाग नेवी मैराथन, ये कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम विजाग से याद रखेंगे। देन IIT मद्रास इन्होंने इस्टेब्लिश किया पहला इंटरनेशनल कैंपस, कहाँ पर? ज़ांज़ीबार में, मार्क करेंगे। RBI ने अभी रिसेंटली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्ट करना है, राइट। तो उनकी जो पहले रिक्वायरमेंट होती थी 100 करोड़ रुपए होती थी, अभी 100 करोड़ को कितनी कर दिया गया है? तो 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, राइट, मार्क करेंगे। अगर किसी को पेमेंट बैंक को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो उनको 100 करोड़ की बजाय अब 200 करोड़ रुपए की कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। इवन अभी हम देखेंगे SBI को RBI ने बोला कि जो इनकी होल्डिंग्स है ना उनको इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई। आपने तभी देखा होगा SBI ने अभी रिसेंटली जो FDs हैं
उन पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, जनवरी में नासा के द्वारा अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया जिसपे 5 पेलोड्स को स्पेस में भेजा गया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का वुल्कन सेंटोर लॉन्च व्हीकल, इसके मदद से इस 5 पेलोड्स को स्पेस में भेजा गया फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस मिशन के अंडर इसको स्पेस में भेजा गया, तो PM1 पेरेग्रीन मिशन 1 के अंडर इन 5 पेलोड को नासा के द्वारा स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट, फ्रेंच बैकेनबॉर्न, ये अभी रिसेंटली किस कंट्री से हैं जिनका निधन हो गया और ये 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर हैं। तो फ्रेंच बैकेनबॉर्न ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपका जर्मनी से। नेक्स्ट, एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं कब, राइट। एवरी ईयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है बाइनली, हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 17वां एडिशन इसका 9 जनवरी 2023 में था। 18वां एडिशन 9 जनवरी 2025 में होगा, 24 में नहीं, क्योंकि 2 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे 18वां कब, 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया की ग्रोथ में जो हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो बाहर से पैसे कमा के इंडिया भेजता है, उसको यहाँ पे सम्मान देने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज द अर्थ रोटेशन डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो अर्थ रोटेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली चूजन बाय अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एज द ऑफिशियल मैप फॉर अयोध्या सिटी इन जनवरी 2024। देखो, अयोध्या सिटी को डेवलप करने की बात की जा रही है, डेफिनेटली अब हम सुन रहे हैं, राइट। यूपी में है अयोध्या सिटी, तो यहाँ पे मैप्स डेवलप किए जाएंगे। हम डेवलप करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे एरिया को डेवलप करना है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखते हुए डेवलप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू टेक यूज़ होगा वो इस सिटी को डेवलप करने में यूज़ किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी को चूज़ किया अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि इनका ऑफिशियल मैप डेवलप करें, तो वो है जेनेसिस इंटरनेशनल, राइट, जेनेसिस इंटरनेशनल। और ये इनका एक 3D ट्विन मैप भी डेवलप करेगा, 3D मैप डेवलप करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिल सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 4 साल का अग्रीमेंट 2023 से 27 के लिए फॉर मीडिया राइट्स विद द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने या फिर के साथ वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये 4 साल का अग्रीमेंट साइन किया है, करेक्ट, फॉर मीडिया राइट्स। नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने कमिट किया कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। रिवर क्रूज टूरिज्म को, राइट, क्रूज शिप्स होते हैं, राइट, रिवर्स में क्रूज शिप्स को चला जाए ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर IWDC जो कि है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने 45,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की। नेक्स्ट, India is set to chair and host which session of UNESCO's World Heritage Committee in July 2024 in दिल्ली। अभी हमने देखा था, अब पूछा गया कि यहाँ पे इसका कौन सा सेशन होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, तो वो 46वां सेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया NPCI के साथ ताकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि हमारा UPI होता है, UPI एनेबल्ड समान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर अभी रिसेंटली NPCI के साथ टाइप करा ताकि एक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि UPI एनेबल्ड होगा वो लॉन्च किया जाएगा फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो प्राइम मिनिस्टर वो भी यंगेस्ट फ्रांस के कौन बने हैं, वो है गैब्रियल एटल। कितने के हैं, 34 साल के हैं ये। किनको रिप्लेस करेंगे ये, एलिजाबेथ बॉर्न को, टू बी द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट, और याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी रिसेंटली इंडिया में भी आएंगे एज अ चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, चंदाका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी न्यूज़ में था, किस स्टेट में लोकेटेड है। दूसरा, ग्रीन रूम्स रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तीसरा, किस IIT ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया ऑल्टेयर के साथ टू इस्टेब्लिश ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब्स।
चौथा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को। एंड पांचवा, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय क्रोहन्स डिजीज, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.